जी स्टेक होल्डर वाला ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੈ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਓ ਅਸੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ 1 ਗੌਰਵ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੈ ਵੀ ਯੂਟੀਵੀ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੈ, ਪਰਮਨੈਂਟ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦਾ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ 2 ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਹੈ 3 ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੇਮੈਨ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਜੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਹੈ ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਥੋੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਇਨ ਦਾ ਡੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਐਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਏ, ਉਹੀ ਫੇਰ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸਟੇਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸਟੇਕ ਹੈਗਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੇਕ 60% ਹੈ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਲਾਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ? ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਓ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਡਿਸੀਜਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਫॉर गॉड सेक। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਅਬਸਟਰਕਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈ। ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਿਭਾਊ ਐਤਕੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ बीएसएफ तो हमने दूसरी स्टेट्स में भी बढ़ाई थी। ਇਹ ਆਪਦੇ ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ BSF ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਰੂਲ ਸਟੇਟ ਸੀ, ਫॉर एग्जांपल ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਥੇ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਘਟਾਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਨਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਰੂਲ ਸਟੇਟ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਵਧਾਤੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਕਮਰਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਐ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਾਂਗੇ? ਤੇ ਨਾਲੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੜੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਟਾਗੋਰਿਕਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੈ that ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਹੈਵ ਯੂ ਫੋਲੋਡ ਦੈਟ, ਹੈਵ ਯੂ ਕੰਸੀਡਰਡ ਦੈਟ? ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨਾ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਤੋਂ ਅਹੰਕਾਰ ਝਲਕਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੂਗਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ 3 ਕਰੋੜ CMO 3 ਕਰੋੜ CM ਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਉਹ ਲੋਕ ਡੀਕਦੇ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਸ਼ੇਮਫੁਲ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਦਾ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਲੂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਹਾਰੇ ਆ, ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹਾਰਨਗੇ। ਆਪਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਭੇਜਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਆ ਕਰਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਹੂੰਗਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ BJP ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ 8-8 ਸਾਲ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆਲ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ 7-8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਵੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ 650 ਕਰੋੜ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਫੰਡਸ ਮੰਗੇ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਬੀਜੇਪੀ ਰੂਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਵੀ ਜਲਦੀ ਐਕਸੈਪਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹੀ ਆਦਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਟਰਨ ਅ ਬਲਾਈਂਡ ਆਈ ਟੂ ਪੰਜਾਬ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है प्रवीण जी, देखिए स्टेक होल्डर वाला तो पॉइंट समझ आ रहा है कि अगर कोई विवाद किसी भी चीज को लेकर हो गया तो उसमें जो भी स्टेक होल्डर्स हैं जिनको भी एक तरह से पार्टी उसमें माना जाए, सबकी बात सुनी जाती है और सबकी राय ली जाती है। तो फिर इसमें स्टेक होल्डर तो पंजाब कहीं ना कहीं दिखता है, लेकिन राय पंजाब की कहीं भी नहीं। शुक्ला जी, पहले तो मेरे कांग्रेस के बोल रहे थे, मैं पहले उनकी बात का जवाब दे देता हूं। मैं वैसे तो मैं ये देखिए, पंजाब की जनता बहुत प्रबुद्ध, बहुत समझदार है। वो कांग्रेसी मित्र के वक्तव्य को उन्होंने जो कुछ बोला उसको सुन के ये बात जरूर समझ गई होगी कि किस तरह से झूठ का जाल बुनने की कोशिश हो रही है अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए। आपने एक सवाल पूछा
कि आप बताइए 8 साल से आपका कौन सा प्रपोजल देखो झूठ बीजेपी बोलती है, बीजेपी ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਜੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਦਤ नहीं है। 15 ਲੱਖ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, 2 ਕਰੋੜ ਜੌਬਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਫਾਰਮਰਸ ਇਨਕਮ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾਏ ਤੇ ਡਾਲਰ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਟਿਆ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਹੀ ਹੋਏ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਰ, मेरे साथ आप इसका लोगों को समझ आवेगा करते हैं। इसका कारण यही है कि आप लोग ये झूठ का जो जाल बुनते हो, इसलिए कांग्रेस की बुरी गति है। अरे फेडरल स्ट्रक्चर साहब, फेडरल स्ट्रक्चर नाम की चीज है। अरे सुनिए फेडरल स्ट्रक्चर नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती? खिलाफ रहे हो भाई प्लीज एक एक करके प्लीज एक एक करके मैं खड़ियाल साहब ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗਾ, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ जवाब लूंगा, एक बार कंप्लीट कर लें। प्रवीण जी, फेडरल स्ट्रक्चर का जिक्र तो होता है, लेकिन उसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि नजर नहीं आ रहा। सुन लीजिए शुक्ला जी, जी जी शुक्ला जी सुन लीजिए जी। आपने सवाल पूछा कि भाई उदाहरण दे दीजिए कोई, क्या उदाहरण दिया कि साहब हमने डेवलपमेंट के लिए पैसा मांगा, हमें मिला नहीं है, ये कोई उदाहरण है? करोड़ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ, ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? 650 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੰਗ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? अरे भाई वो ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। अरे एक और दसदा है, रीसेंट दसदा है जी, इन्होंने मैं रीसेंट वाला दसदा है। प्लीज एक एक करके थोड़ा या प्लीज खड़ियाल जी, प्रवीण जी एक एक करके प्लीज। आप सोच रहे हो कि आप ऐसे भरमा लोगे? गौरव जी 295 लोगों को समझ आवे, गल समझ आवे कि आखिर की हो रहा है। 295 वाला भेजा ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ जवाब ले लो ਹੁਣ। 295 वाला प्रपोजल भेजा ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ठीक है, मैं खड़ियाल साहब ਤੁਹਾਡਾ पॉइंट रखना है, एक सेकंड सर, एक सेकंड। प्रवीण जी देखिए, पंजाब की विधानसभा में बहुत सारे बिल या फिर जो इश्यूज हैं उसको पास किया जाता है, आगे भेजा जाता है सेंटर के पास राज्यपाल के जरिए, वो फंस जाती हैं फाइलें। वो 295A किया गया था, वो भी फंस गई, वो वापस भेज दी गई, और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, वो एग्जांपल के तौर पर उसका जिक्र कर रहे हैं। प्रवीण जी देखिए, ऐसा शुक्ला जी, जो संवैधानिक विषय है ना, संवैधानिक विषय पे मुझे लगता है कि ऐसे मित्रों से चर्चा हो जिनको संविधान की जानकारी हो तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन मैं अपनी बात पहले मुझे पूरी करने दीजिए। ये एक बार भाई साहब, हम तो हाई कोर्ट में जाके लोगों का पक्ष रखते हैं, आप पर्सनल टिप्पणी मत कीजिए, मुद्दे पे बात कीजिए। इसलिए आपसे बहस नहीं करना चाहता। साहब थोड़ा इंतजार करें, एक सेकंड कंप्लीट कीजिए प्लीज। प्रवीण जी आप 20 सेकंड में, समय खराब हो रहा है, आप प्लीज पॉइंट बार एक बार कहते हैं कि साहब 8 साल से हमारे मुद्दे पेंडिंग है, एक उदाहरण नहीं दे सके, लेकिन मैं उदाहरण देता हूं पिछले 50 साल से। वाला ठीक है, हमने 295 का हमने वहां पे प्रपोजल भेजा था कि उम्र कैद होनी चाहिए, कोई भी बेअदबी करेगा तो उसको उम्र कैद होनी चाहिए, प्रपोजल भेजा था 295 के तहत, आपने रिजेक्ट कर दिया उसको। 50 साल की बात सब थोड़े कंप्लीट कर लीजिए, पॉइंट पर आ जाइए प्लीज। खड़ियाल जी और प्रवीण जी पॉइंट पर रहें, पॉइंट पर सर प्लीज, जिसके ऊपर डिबेट है जी। प्रवीण, अरे वही कह रहा हूं। अभी इन्होंने एक बात और कही कि जो बीएसएफ का एरिया 50 किलोमीटर किया गया, देखिए बीजेपी शासित प्रदेश में कम कर दिया गया। मुझे देखिए हैरानी होती है, कांग्रेस की सरकार ने किया क्या हुआ था शुक्ला जी, मुझे लगता है जनता को पता लगना चाहिए। वेस्ट बंगाल के अंदर बीएसएफ का एरिया था 15 किलोमीटर, गुजरात के अंदर वही बीएसएफ का एरिया था। मुद्दे पे आइए ना साहब, आप ये डिफ्लेक्ट करी जाते हैं गौरव जी, भटकाने की कोशिश करी जाते हैं, कोई जवाब है नहीं कोई। चंडीगढ़ वाला इश्यू देते रहिए, लोगों को समझ आवे। देखो, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट होवे या फिर ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਰਡ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਲकुल नवी पीढ़ी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ नहीं पता होना। ठीक है प्रवीण जी, आप थोड़ा सा होल्ड कीजिए, बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं क्लेयर जी, उनका एक रिएक्शन लेने, आप इकट्ठे जवाब देना सर, आप इकट्ठे जवाब दे देना सर। क्लेयर जी, अरे शुक्ला, फिर मेरी बात आपको इंपॉर्टेंट नहीं लग रही है? सर लग रही है, मैं वही कह रहा हूँ ना, कंप्लीट कर लीजिए। आप बोलता ले तुसी यहाँ इतने ना करें करो जी, पिछले 3 मिनट से आपको 4 मिनट आपके पास ही थे सर, आपने बता दिया। ये क्या मतलब है भाई? क्यों पंजाब की जनता को झूठ बोल के भरमाते हो? सच क्यों नहीं बताते पंजाब की जनता को? क्या आपका इंटरेस्ट है कि झूठ बोल के लगातार झूठ बोलते हो? आप क्यों नहीं बताते कि कांग्रेस ने यूनिफॉर्म ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜਿਆ, ਦੱਸੋ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 295AA वाला भेजा कि उम्र कैद होनी चाहिए। एक करके करेगा खड़ियाल साहब, थोड़ा एक बार गल कर लेने दो, पता लग जाएगा वो क्या कहना चाह रहे हैं। प्रवीण जी आप एक सेकंड, प्रवीण जी आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए सर, 20-30 सेकंड लीजिए प्लीज, कंप्लीट कर लीजिए, पॉइंट पर रहिएगा जी। पॉइंट, अरे साहब इन्होंने ही बोला है बीएसएफ के बारे में, मैंने तो नहीं बोला। मैं तो वही कह रहा हूं ना कि डी रेल होती है, कभी वो बोल रहे हैं, कभी आप बोल रहे हैं, कभी क्लेयर जी बोल रहे हैं, प्लीज आप कंप्लीट कर लीजिए। जी मेरा सवाल ये है कि जब ये बीएसएफ का जिक्र कर रहे थे तो आपने इनको रोका क्यों? आप डी रेल कर रहे हो। अगर मैं आप जवाब दे रहा हूं तो आपको, उससे पहले आप बोल रहे थे बीएसएफ, मैंने तो जवाब दिया था। जब ये बोल रहे थे झूठ, आपने क्यों नहीं रोका?
मेरा सीधा सवाल आपसे भी सर एक लाइन आ रही है सर, आप मेरे ऊपर कह रहे हैं एक लाइन आ रही है, मैं तो आपको दोनों को टाइम दे रहा हूं ना सर। नहीं प्रवीण जी, इस तरह से नहीं, आप मेरे ऊपर एलिगेशन लगाने शुरू हो गए। आप पूरी डिबेट निकलवा कर देख लीजिए, 35 मिनट हुई है, उसमें से कम 15-18 मिनट आपके पास थे। अब आपको उसमें इतराज है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं ना, आप अपनी बात के ऊपर कंप्लीट कीजिए उसको। मैं तो बार बार बोल रहा हूं कि आप पॉइंट पर आइए, अपनी बात को कंप्लीट कीजिए। आप बोल रहे हैं कि मैं आपको टाइम नहीं दे रहा हूं, लोग सुन रहे हैं, आप सुन लीजिएगा, आप पूरी डिबेट को दोबारा सुन लीजिएगा। अगर आपके पास ज्यादा टाइम ना हुआ तो कहिएगा। मैं तो आपको दोनों तरफ से रिएक्शन लेने के बाद आपके पास आ रहा हूं कि आप बोलिए अपनी बात। शुक्ला जी, मुझे हैरानी होती है, मैंने टाइम की बात कब की? मैंने तो केवल इतना कहा सर, मैं तो आपको वही कह रहा हूं ना कि अगर उन्होंने एक लाइन बोल दी, मैंने उनको बोला कि भाई आप डीरेल मत कीजिए, अगर उसी के ऊपर हम आगे बढ़ते जाएंगे, समय अभी भी खराब हो रहा है। मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि उसी के ऊपर बात कर लीजिए। मैंने इनफैक्ट जब कलेर जी ने जिक्र किया था, मैंने ये भी बोला था कि मैं किसी दिन अलग से डिबेट रख लूंगा बीएसएफ के मुद्दे के ऊपर। फिर आपने इनको क्यों बोलने दिया? शुक्ला जी देखिए, ऐसा है, कमाल है सर, 2 लाइनें उन्होंने बोली है, मैंने उनको, चलिए प्लीज आप कंप्लीट कर लीजिए, समय खराब हो। हाँ, तो सवाल पूछिए अब आपने। सर मैं तो वही पूछना चाह रहा हूं कि वो बोल रहे हैं कि स्टेक होल्डर्स को बीच में रखना चाहिए था, और दूसरी बात वो ये बोल रहे हैं कि अगर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के टाइम ये बात हुई कि टेम्परेरी यूटी है, टेम्परेरी राजधानी है हरियाणा की, और टेम्परेरी विधानसभा दी गई है, तो अगर अब विधानसभा की इमारत नई बन रही है तो फिर वो चंडीगढ़ में क्यों? यही एतराज जताया जा रहा है मेरा। देखिए चलिए शुक्ला जी, अब मैं फिर दोबारा एक सवाल पूछ रहा हूं, मुझे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की कॉपी लाके वो लाइन दिखा दें जहां पे लिखा है कि टेम्परेरी राजधानी यूटी है, मुझे दिखाए लाइन वो। एक्चुअली मेरा केवल यही निवेदन है शुक्ला जी कि इन मित्रों को आदत पड़ गई है कि बात पे झूठ बोलो, मीडिया में आके किसी ने सवाल नहीं पूछना, मीडिया में आके किसी ने सबूत नहीं मांगना, जो मर्जी झूठ बोलो। आपका वैलिड पॉइंट विधानसभा तो इनके ऊपर गौरव जी क्वेश्चन उठ जाता, कुछ भी झूठ बोल देते हैं। गौरव चलिए अब जवाब लेने दीजिए सर, ठीक है, अब जवाब लेने दीजिए। क्लेर साहब, जो तुम जिक्र कर रहे हो कि टेम्परेरी यूटी है, टेम्परेरी राजधानी है, वो कह रहे ने कि कित्थे लिखिया दस दो कि जे जिक्र होया किसी अकॉर्ड दे विच या किसी जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनया उस दे विच कोई है जिक्र इस तरीके दा? गौरव जी, मैनू ना बड़ी हैरानी भी है ते बड़ी हासी भी आउंदी है कि बीजेपी एक हरियाणा की सरकार के प्रवक्ता फैक्ट्स तो दूर जाके गल करते हैं। इन्हों पूछो अगर ये टेम्परेरी राजधानी नहीं सी फिर हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार तो पैसे क्यों मंगे वक्री राजधानी बनाने दे? इन्होंने तो डिमांड की है पैसे की, इस तो पहला डिमांड सी हरियाणा सरकार की कि केंद्र सानू फंड देवे, असीं वक्री राजधानी बनानी है, और पंजाब उहदा स्वागत करता है। हरियाणे का एक राजधानी का हक है, ये किते भी बना लेन हरियाणे, सानू की दिक्कत है? इन्हों केंद्र जिन्ने मर्जी पैसे देवे, सानू कोई दिक्कत नहीं। और जिहड़ी दूसरी गल है, तुसीं देखो भी मैं स्टेक होल्डर्स की गल ही नहीं करता, स्टेक होल्डर का इशू ही नहीं है, क्योंकि इशू ही सिंपल ये है कि पंजाब चंडीगढ़ पंजाब का है और पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। सो स्टेक होल्डर होना ना होना, पूछना ना पूछना, ये मैटर ही नहीं करता, क्योंकि ये पंजाब के एरिए च बनया, पंजाब की कैपिटल है। हरियाणा क्योंकि उस समय नवा बनया सी, हरियाणा की कोई राजधानी नहीं सी, हरियाणा ने सिर्फ ये राजधानी शेयर की सी। अगर ये गल ना होंदी तो हरियाणा ने अपने कॉलेजेस पंजाब यूनिवर्सिटी तो वक् क्यों किते? हरियाणा ने अपने बहुत सारे दफ्तर चंडीगढ़ तो बाहर क्यों लै गए? सो किते ना किते हरियाणा गवर्नमेंट का डबल स्टैंडर्ड है, सेंटर गवर्नमेंट का डबल स्टैंडर्ड है। एक पासे तो मानते हैं कि चंडीगढ़ पंजाब का है और केंद्र तो फंड मंगते हैं कि सानू नवी राजधानी के पैसे दो, और दूजे पासा जो रहे के गल्लां करते हैं। सो ये दोनों चीज़ों को अलग अलग डील करन। और जी तीसरी गल है, मैं फिर दोबारा कहना चाहता कि अज मैं लास्ट गल मैं कॉन्क्लूड कर रहा कि अज शर्म आती है कि पंजाब के मुख मंत्री ने पंजाब नूं सरैंडर किया केंद्र अगे, और इन्नी भी हिम्मत नहीं दिखाई उन्होंने बुलारियां ने कि अज इहनूं आके डिफेंड करने का। मतलब आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री के नाल नहीं खड़ी, मुख्यमंत्री के बयान तो आम आदमी पार्टी किनारा कर गई है, इसका जवाब हुण मुख्यमंत्री नूं भी देना पऊगा। ठीक है प्रवीण जी, देखिए अब वो कह रहे हैं कि आपने डिमांड की पैसों की, आपने सुन लिया होगा सारा कुछ। प्रवीण जी मैंने सुन लिया। देखिए ऐसा है, जब हम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का जिक्र करते हैं, हमें नहीं भूलना चाहिए 1966 में हुआ था, जिसमें कहीं नहीं लिखा। लेकिन जो बात ये कह रहे हैं 1985 में राजीव लोंगोवाल समझौता जो हुआ, उस राजीव लोंगोवाल समझौता में ये विषय आया, जिसके बदले में ये कहा गया कि चंडीगढ़ के बदले हिंदी भाषी क्षेत्र हरियाणा को दिए जाएंगे और हरियाणा अपनी अलग कैपिटल बनाएगा। ये 1985 में हुआ, इस बात से तो मैं इनकार ही नहीं करता। मैं यहां जिक्र कर रहा हूं 1966 रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। मेरा फिर वही सबमिशन है शुक्ला जी कि इस तरह का झूठ ना फैलाया जाए। राजीव लोंगोवाल समझौते में ये हुआ है। आपने पैसे क्यों मांगे? खट्टर सरकार ने केंद्र सरकार से पैसे क्यों मांगे अलग राजधानी बनाने के लिए? ये बताएं लोगों को।
उसका जवाब सुनो। प्रवीण जी, आप क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हैं? खट्टर सरकार ने पैसे मांगे केंद्र सरकार से, शुक्ला जी को चुप कराएंगे। खट्टर सरकार ने क्यों पैसे मांगे? अगर आप चंडीगढ़ पे आपका हक था तो खट्टर सरकार ने पैसे क्यों मांगे? मैं थोड़े को वापस होना है। प्रवीण जी आंसर करना चाह रहे हो। प्रवीण जी जी देखिए, ये जो कह रहे हैं कि क्या मनोहर लाल सरकार ने केंद्र से पैसे मांगे, हमारे गृह मंत्री अनिल विज जी का जब ये विषय दोबारा से उठा तब ये बयान जरूर आया था कि हमारे हिंदी भाषी क्षेत्र हमें दे दो और हमें पैसे दे दो, हम अलग बना लेंगे। ये अनिल विज जी का बयान आया था, इससे इनकार नहीं करूंगा। तो हिंदी भाषी क्षेत्र दो तो ना भाई, आप पानी भी नहीं देते, हिंदी भाषी क्षेत्र भी नहीं देते। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦਾ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸ਼ਾਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਤਾਂ ਲੈਣ ਇਹ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਾਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। अरे भाई, राजीव लोगोवाल समझौते में क्या हुआ था वो बता दीजिए। राजीव लोगोवाल समझौते में क्या ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦਾ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ। ਸ਼ਾਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੰਨ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਸੋ ਦੋ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਿਉਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ? ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਪਲੀਜ਼ ਜੀ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਪੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦਾ ਇਲਾਕਾ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਸ਼ਾਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਆਰਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਸ਼ਾਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦਾ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ। ठीक है खड़ियाल साहब को जाना मैं। गौरव जी ऐसा है, पहले तो शाह कमीशन जो बना था वो 1964-65 के आसपास बना था, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है लेकिन तब तक था। दूसरी बात जो हिंदी भाषी क्षेत्र देने की बात है, ये राजीव लोंगोवाल समझौता 1985 में आई। अबोर फाजिलका के एरिया में 117 शायद गांव थे, जिसमें कंदू खेड़ा एक गांव था, मुझे गांव तक का नाम याद, वो समझौते में आया था। ये कैसे इनकार कर रहे हैं इन बातों से? और हमारे मंत्री अनिल विज जी ने एक बयान दिया था जिसका मैं जिक्र कर चुका हूं। आपने हिंदी भाषी क्षेत्र दिए क्या? राजीव लोंगोवाल समझौता 1985 पढ़ लीजिए, कौन इनकार कर रहा है? पढ़िए उसको। ठीक है। तो कहीं ना कहीं अपनी सुविधा की राजनीति ना करें, पंजाब की जनता के सामने झूठ ना परोसें। आपकी राजनीतिक मजबूरियां हैं, ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन आपका अस्तित्व बचा कहां है भाई? आप जितना झूठ बोलते हैं पंजाब की जनता उतना आपको नकार रही है, उसके बाद तो समझ लीजिए। ठीक है, समय ज्यादा नहीं है हमारे पास, एक एक रिएक्शन मैं जरूर लेना चाहूंगा। खड़ियाल साहब, शुरुआत तुहाडे तो कि पंजाब सरकार दे कोल अदालत जाण वाला, तुसीं खुद भी लॉयर हो, पंजाब सरकार दे कोल अदालत जाण वाला की ऑप्शन है कि चंडीगढ़ दे विच विधान सभा दी इमारत ना बने, जे तुसीं इतराज जता रहे हो या बाकी सारे इतराज जता रहे ने? डेफिनेटली देखो गौरव जी, नंबर 1 आम आदमी पार्टी नूं पहली गल तां इह चीज दे खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिदा सीगा भी सानू इस चीज वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस, क्योंकि जदों वो यही कहंदे आ भी सानू भी जमीन दित्ती जावे, इंप्लाइडली एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो दूजी गल ये है कि लीगल रिकोर्स वेरी मच पॉसिबल हैगा। जदों पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, अकॉर्ड्स हैगे है, तुसी जा सकदे हो कोर्ट दे विच। ये जज नहीं हैगे बीजेपी दे प्रवक्ता इत्थे, ये भी एक दलील दे सकदे, इट्स हिज वर्ड अगेंस्ट माय वर्ड। मैं इन्हां नूं ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ कि दसो 8 साल पहला ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 8 साल छोड़ो तो पहला दस देना है। 295AA जो है उम्र कैद हो कोई भी बेअदबी करे पंजाब में, हमने प्रपोजल बना दिया, यहाँ पे एक्ट पास कर दिया, आपने वहां पे रिफ्यूज कर दिया। अब उसका जवाब दीजिए, आपने एक्सेप्ट किया उसको आपने देखा तक नहीं, उसके बाद रिजेक्ट करके छोड़ दिया। अब हम आम आदमी पार्टी को फिर से कह रहे हैं, ਅਸੀਂ फिर आम आदमी पार्टी ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭੇਜੋ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ, लेकिन आम आदमी पार्टी ट्राई नहीं करती, बीजेपी पंजाब ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਅੱਛਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦਾ, ਸੇਵਿੰਗ ਪਾਵਰਸ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਨਥਿੰਗ ਇਨ ਦ ਫੋਰਗੋਇੰਗ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਆਫ ਦਿਸ ਪਾਰਟ ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਡੀਮਡ ਟੂ ਅਫੈਕਟ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆਫ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਨਾਲੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਲਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਆਫਟਰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦ ਨੇਮ, ਏਰੀਆ ਔਰ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਆਫ ਐਨੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ or other territorial division in the state or union territory as the case may be। ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਕਿਹੜੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਆਲਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਬਗੈਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੇ, ਬਗੈਰ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਚ ਲਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਅ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲਾਅ ਦੱਸਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਅ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲਾਅ ਦੱਸਤਾ।